Hello everyone, in previous lectures we studied the concept of electric field, that how an electric field is produced by a point charge. Electric fields are generally in outward direction from positive charge and inward direction in negative charge. We studied that concept. After that we also studied this concept in deep way by example of real life example of inkjet printer. So in this video we are going to study the concept of electric dipole. So what actually the electric dipole is, we are going to study in this video. So definition of electric dipole is when two equal charges of same magnitude, equal and opposite charges of same magnitude. Suppose this is equal charges, suppose q charge and another minus q. So their magnitude are same but their sign is opposite. So these are two equal and opposite charges of same magnitude are being very close to each other. Actually right now for explaining I have keep them at apart from a particular distance, but they are actually very close to each other. For understanding I made this like this, at particular distances. So when these two unit charges of same sign, opposite sign are bring very close to each other, they form an electric dipole. So this is the definition of electric dipole. When two charges of same magnitude and opposite sign are bring very close to each other, they form an electric dipole. So we write an electric dipole in this way. So direction of electric dipole is from negative charge to positive charge. So इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक डायरेक्शन भी होता है जो नेगेटिव साइन चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ आता है. हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है एक वेक्टर क्वांटिटी. अब चूंकि डायरेक्शन आ गया है इसका और इसका एक मैग्नीट्यूड भी होता है, वो डिस्कस करेंगे. तो डायरेक्शन हमें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है, दिस इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. सो दिस बिकम्स डाइपोल, इट बिकम्स ए vector quantity. So we know that vector quantities have two things, that is magnitude as well as direction. We understand the direction, it is from negative charge to positive charge. It also has its magnitude. So magnitude depends, we will see the magnitude also. So this is the dipole, and direction of dipole we represent by a vector sign like this. Suppose this is the center of the dipole. This is the center of the dipole, and there are these two charges are apart by distance. This is the center of these two charges. Suppose this is the distance a, and this also becomes a, equal distance from the center. So the net distance of between two charges are 2a. So what is we understand the direction of electric dipole. Now it's come about its magnitude. So what is the magnitude of electric dipole? So the dipole sign, the sign of electric dipole is represented by p. As we know that it is a vector quantity, so let's make a p vector here. Actually right now I am removing this vector sign, I am talking about the magnitude. We know the direction, that's why I have removed this vector sign. Now actually right now I am talking about the magnitude of this dipole moment. So magnitude of dipole moment is charge into distance between them. Distance, charge into distance between them. So it is very easy to write here. The charge is q and distance between magnitude of charge, I am talking about the magnitude. So I written q, and distance between them is a plus a 2a. So our net dipole moment is 2qa. Remember this formula. फॉर्मूला क्या, ये चीज होता है, फॉर्मूला ही होता है एक तरह से. तो डाइपोल मोमेंट इज 2qa एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. तो अभी एक सिस्टम बन चुका है जिसको मैं बोलूंगा, इन दोनों का अलग अलग चार्ज नहीं बोलूंगा, इन दोनों को एक ही बोलूंगा जो कि है इलेक्ट्रिक डाइपोल. सो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलूंगा, अलग अलग नहीं बोलूंगा कि क्यू चार्ज अलग है और माइनस क्यू चार्ज अलग है. ये सब एक पूरा सिस्टम बन चुका है. सो इट्स मैग्नीट्यूड इज दिस. अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इसके आसपास जो है, अब क्योंकि चार्जेस से बना हुआ है तो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी. हमने पढ़ा था कि कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट होता है वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर देता है. तो जो डाइपोल है, इस डाइपोल के आसपास भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना. तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे सपोज
इलेक्ट्रिक फील्ड बिछी हुई है आसपास, तो एक पॉइंट लेता हूँ कहीं पे यहाँ पे, तो मुझे कैलकुलेट करना है कि इस डाइपोल की वजह से, है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसका मैग्नीट्यूड का क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, वो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, है ना। तो उस इसे तो ये पॉइंट अलग ही जगह पे आ रहा है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ दो जगह की डिस्कस करेंगे, दो लोकेशन का। एक तो एक्सियल पोजीशन पे एक पॉइंट अज्यूम करेंगे और परपेंडिकुलर पोजीशन पे एक पॉइंट अज्यूम करेंगे। अभी इसमें वीडियो के लिए हम ये वाला पॉइंट की बात नहीं करेंगे, बाद में इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। So we will talk about the electric field by this dipole and on the axial position right here and on the perpendicular position of this dipole. The direction is this. So this is the axial position. Electric field will calculate at this point and at this point, perpendicular point. So let's see. Let's calculate the electric field at the axial position of this dipole. So here this is the dipole and we have assumed a point in the axial position of this dipole. So here this is the point and we are going to calculate the electric field by this dipole at that particular point. So let's calculate. So here the charges are q and minus q. There, let's assume one more thing. For calculating the electric field we assume a unit force on the unit positive charge. जब भी हमको किसी पॉइंट पे, जैसे अभी इस कंडीशन के लिए नहीं, फ्यूचर में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे चार्जेस के, तो कहीं पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे हम कैलकुलेट करनी होती है, तो हम उस पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इमेजिन कर लेते हैं, उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे हम फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो फोर्स कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड ही होती है। So let's assume that I keep a unit positive charge at this particular point. So force on this unit positive charge due to this minus q and plus q is there. See, so minus q and these are in opposite sign. So minus q will try to attract this. So force would be in this direction due to the minus q charge, and the force due to the plus q charge would be in opposite direction in this way. This is the point, because these are the like charges, so they will repel each other, so force due to this would be in this direction. So net force would be, let's assume in the force due to minus q would be F1 and force due to plus q to be F2. Here I make the vector sign F1 to be larger and F2 is smaller, because the magnitude of F1 is greater than F2, because the distance between this point charge from minus q is smaller, and from as compared to the plus q as compared to plus q. So we know that the Coulomb's law is inversely proportional to distance between them. So that's why if the distance is smaller, the force would be larger in magnitude, and when the distance becomes larger, the force will be this smaller in magnitude. So here the net force would be F net. This becomes F1 minus F2. लार्जर क्वांटिटी माइनस स्मॉलर क्वांटिटी, मैंने F2 माइनस F1 नहीं लिखा यहाँ पे क्योंकि बड़े में से हम छोटा माइनस करते हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2. सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ F1. F1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, कि Q1 Q2. अब यहाँ पे Q1 Q2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये Q है और ये 1 है, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करते हैं तो वो वही वैल्यू होती है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या रहेगा, Q रहेगा, और एक माइनस साइन भी आ जाएगा। पर अभी माइनस साइन में की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो डायरेक्शन तो दिख रहा है इस साइड है तो माइनस लगा दिया, पर हम माइनस साइन में अभी यहाँ पे सॉल्व करने के लिए नहीं बात करूँगा क्योंकि वेक्टर साइन नहीं लगाया पहली बात मैंने यहाँ पे, मैं सिर्फ इस फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। सो F1 वुड बी K Q1 Q2 अपॉन R square. So distance, we have imagined this point and we have sorry for that. So let's imagine that this point is R distance apart from this center of the dipole. This is the center of the dipole and we have assumed that this foreign point to be R distance apart from the center of the dipole. So it would be easier for calculation. So the distance between these two charges are R minus A. You can see this, इतने यहाँ से लेके यहाँ तक R है, यहाँ से लेके यहाँ तक A है, so this distance becomes R minus A. So KQ upon में distance का square, so it becomes R minus A whole square. Similarly, F2 will be K Q1 Q2 Q1 Q2.
multiply, it will be the numerator of both of them would be same, and denominator, let's see the distance between them. So distance between this charge and this charge is r plus a. So here I am going to write r plus a whole square. So I have calculated. We will not simplify it here because it will become more complicated. So we will simplify when I am doing F1 minus F2. So I have calculated F1 force and I have also calculated F2. So now let's talk about the F net force. So this becomes KQ upon R plus A whole square F1 minus F2. So this is F net force. So let's take the LCM here. So LCM would be, the situation is too much complicated. जब LCM लेंगे तो इन दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसका मल्टीप्लाई इसमें होता है, उसका मल्टीप्लाई इसमें होता है. जब LCM हम देखते हैं ना कि सेम नहीं हो पाते तो इसी कंडीशन लगानी पड़ती है. इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, उसका मल्टीप्लाई इधर और उसका मल्टीप्लाई इधर. छोटी क्लास में हमने सीखा होगा. सो द LCM वुड बी, let's write the denominator first. When you multiply this from this, so here I am seeing an identity that is a plus b into a minus b. So this becomes a square minus b square, and there is whole square on both of the side. So we will write this whole square. यहाँ पे 4 नहीं मत लिख देना गलती से, क्योंकि बात हम इन दोनों की बात कर रहे हैं. वो स्क्वायर जो है पावर ऐसी की ऐसी है, तो अधिकतर गलती यहाँ पे 4 लिख देते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, ध्यान रखना. अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो उसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ. उसकी आइडेंटिटी को भी खोल देता हूँ. 3 चीज़ें आएंगी और तीनों चीज़ों का मल्टीप्लाई इसमें होगा. तो इधर पहले लिख देता हूँ KQ एज इट इज, एंड आई एम राइटिंग R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA minus this would multiply by this. So KQ R square plus A square minus 2RA. So here when we will solve, so the KQ and KQ are equal both sides. So this R square and A square, R square and A square will be cancelled out, but this 2RA and this minus 2RA will be add up. So the resultant would be KQ as it is. So 2RA plus 2RA becomes 4RA. 4RA upon this remains same, R square minus A square. So let's, I am removing this, so there is space is not there. So KQ into 4RA. So here comes the tricky part, that I am replacing. We know that dipole moment P is equals to 2 times QA. So here 2 times 2 QA. I am removing 2 from this 4. 2 and writing 2 here. 2 to the 4, the things remains the same. 2 QA would be replaced by P, the dipole moment. So 2 Q and A, this would be replaced by this dipole moment. So our net electric field, it is net electric force, but I have explained it before. The force on unit positive charge is nothing but the electric field only. So this net electric field at that point on axial position is 2 kpr upon r square minus a square to the power 2. Now here, as per the definition of electric dipole, we place these two charges are when we place these two charges are actually very close to each other. So this value of A as compared to R is too small. The value of A is as compared to R is too small. So जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट R के बराबर ही होगी. तो R के कंपेरेटिवली ये जो है, तो यहाँ पे मैं इस A को 0 रख सकता हूँ. नेगलेक्ट कर रहा हूँ, 0 नहीं रख रहा हूँ, इसको नेगलेक्ट कर रहा हूँ उसके कंपेरेटिवली. जैसे कि अगर R की वैल्यू 1 लाख होगी और उसके कंपेरेटिवली तो A कितना होगा, 1 होगा. तो 1 लाख में से अगर मैं 1 को माइनस भी करूँगा तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं. तो इसलिए मैंने इसको इसमें से माइनस कर दिया, उसको हटा दिया है ना. तो नेगलेक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 r to the power 4. This becomes r to the power 4. I will writing directly here, r to the power 4. So this r and this r would be cancelled out. So this become r to the power 3 r cube. So our final answer is 2 kpr. 2 kpr, sorry, this r is cancelled out by this. So 2 kp upon r cube.
So this is the electric field due to this dipole at this axial point. So now we are going to calculate the electric field at the perpendicular point. Now here comes the second condition, that electric field at the perpendicular bisector of this dipole. This is a dipole here, and I have assumed that the point to be this at the perpendicular axis of this dipole. So this is our dipole moment, and this is the center, and let's assume that this point is r meter far away फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल. पहले कंडीशन में भी जब एक्सियल पोजीशन पे भी हमने पॉइंट अज्यूम किया था, वो भी सेंटर से अज्यूम किया था, और यहाँ पे भी जो पॉइंट है ये भी मैं एक्सियल पोजीशन परपेंडिकुलर पोजीशन पे ले रहा हूँ, ये भी मैं सेंटर से ही ले रहा हूँ डाइपोल के, क्योंकि डाइपोल कोई अब ये अलग चार्जेस तो है नहीं, एक ही कॉम्बिनेशन ही, इसी को मैं डाइपोल बोलता हूँ. तो डाइपोल का एक सेंटर पॉइंट होता है, उसी से मैं अज्यूम करता हूँ. सो दिस इज ए, दिस आर, और ये जो पॉइंट है ये इसका जो डिस्टेंस है चार्ज से वो वुड बी द डी, एंड वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट में. तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं पॉइंट चार्जेस का. सो यहाँ पे हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी Q1 और Q2 से, वो देखते हैं. So first let's assume the unit positive charge to be here. So force on this unit positive charge, and we know that the force on unit positive charge is nothing but the electric field at that point. So इस माइनस Q से इस प्लस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो इस तरह से होगा. लेट्स राइट हियर F1, E1 ही लिख देता हूँ क्योंकि बात F1 ही तो फोर्स ही तो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिखा तो मैं डायरेक्ट E1 लिख देता हूँ यहाँ पे. और जो पॉजिटिव पॉजिटिव ये दोनों क्या करेंगे, रिपल करेंगे, तो इस वजह से इसका जो फोर्स है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो होगा कुछ इस डायरेक्शन में, डेट इज E2. तो हमें दोनों की वजह से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल चुकी, दैट इज E1 फ्रॉम दिस माइनस Q चार्ज एंड E2 फ्रॉम दिस प्लस Q चार्ज. सो द नेट रिजल्टेंट वुड बी इन दिस डायरेक्शन. You can imagine that if one vector is here and another vector is here, the resultant would be in this direction, E net. So let's calculate the E net, है ना. तो पहले उसके लिए हमें E1 और E2 तो पता चल जाए, फिर वेक्टर्स का एडिशन का जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है वो लगा देंगे, और E1 और E2 की बात करते हैं. और यहाँ पे E1 और जो E2 इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, वो दोनों सेम है. देखते हैं कैसे. E1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा KQ अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्ज एंड दिस चार्ज इज, लेट्स अज्यूम दैट टू बी D. पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, जैसे कि है A R और ये क्या है D है, और D की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. तो अभी फिलहाल के लिए मैं D लिख रहा हूँ क्योंकि वो सब लिखूंगा तो सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी. सो हियर E1 बिकम्स KQ अपॉन D स्क्वायर, और सिमिलरली E2 भी जो होगा KQ1 Q2. 1 लिखने से मतलब है नहीं, वैसे बता ही दिया था पिछली पहले वाली कंडीशन में. सो KQ अपॉन D स्क्वायर. सिमेट्रिकल है तो ये भी D होगा और ये भी क्या होगा, D होगा. तो KQ अपॉन D स्क्वायर एंड KQ अपॉन D स्क्वायर. तो मैग्नीट्यूड तो E1 और E2 का दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया, है ना. और डायरेक्शन भी पता चल चुका, एक का डायरेक्शन इधर, एक का डायरेक्शन इधर है. अब हम बात करते हैं E नेट की. दोनों वेक्टर है, दोनों को प्लस करना है, और वेक्टर को एडिशन का जो कंसेप्ट है उनको पता है. तो E नेट होता है, E नेट इज इक्वल्स टू अंडर रूट, 11th क्लास में पढ़ा था वेक्टर एडिशन के अंदर, दैट इज E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 एंड कॉस थीटा, दैट एंगल बिटवीन देम. E1 एंड E2 के बीच में जो एंगल है वो. तो सब बात करते हैं. अब यहाँ पे E1 और E2 दोनों क्या है, इक्वल है. E1 और E2 पता है इक्वल, और मैग्नीट्यूड भी पता है, हम वैल्यू रख देंगे. अब बात आती है कॉस थीटा की. तो कॉस थीटा इन दोनों के बीच का एंगल क्या है वो देखते हैं हम यहाँ पे. तो ये लेट्स अज्यूम दैट दिस पॉइंट इज अवे फ्रॉम बाय एन एंगल. यहाँ पे जो एंगल है ये मान लेते हैं हम थीटा मान लेते हैं, है ना. तो जिस वजह से क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए. तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा. सो दिस बिकम्स this also becomes theta, so net angle becomes 2 theta. so ये फॉर्मूले को मैं करेक्शन करके यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 थीटा लिख देता हूँ, जिससे सही रहेगा. तो बात करते हैं कि cos थीटा जो है इसकी मैग्नीट्यूड कितना है, cos थीटा की वैल्यू कितनी. तो cos थीटा यहाँ पे मुझे दिख रहा है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, दिस बिकम्स a अपॉन में b. तो हमें cos थीटा की वैल्यू पता चल गई, cos थीटा की वैल्यू नहीं पता है, cos थीटा की पता है, ध्यान रखना इसमें. तो बाद में अब सिचुएशन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी, देखते हैं.
सो लेट्स रिप्लेस E1 E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं यहाँ पे जो है नीचे से इनके 2 हटा देता हूँ, ई लिख देता हूँ, सही रहेगा। सो यहाँ पे ई और ई क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर बन जाएगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। सो लेट्स सिंप्लीफाई इट, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, दिस बिकम्स 2e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर कॉस 2 थीटा एज इट इज। और यहाँ पे भी कुछ कॉमन दिख रहा है, 2e स्क्वायर और 2e स्क्वायर इधर भी कॉमन दिख रहा है, तो इसको भी कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स 2e स्क्वायर, इफ आई एम रिमूविंग 2e स्क्वायर फ्रॉम हियर कम्स ओनली 1 प्लस 2e स्क्वायर, जब इधर से निकाल लिया तो बचेगा क्या, कॉस 2 थीटा। और यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी जैसा याद दिख रहा है, 11th में हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी थी, दैट इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जो 2 थीटा था उनको यहाँ से सॉल्यूशन मिल चुका है, उसका क्या मिल गया है,2 कॉस स्क्वायर थीटा। और जो 2 थीटा था वो हमने ब्रेक कर दिया, उसको इस वे में लिख दिया है ना। तो यहाँ पे देख रहे थे सारी चीज़ें अंडर रूट से मेरे ख्याल से बाहर आ चुकी है, ई स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा भी बाहर आ जाएगा, और 2 2 ज़ा 4, तो वो भी अंडर रूट से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो बाहर आने के बाद कुछ ये इस तरीके से दिखेगा, 2 2 थे, एक 2 बाहर आया ई, और इसमें कॉस थीटा, कितना सिंप्लीफाई हो गया इतना है। अब इसको थोड़ी जगह नहीं बची, इसको यहाँ से रब कर देता हूँ मैं, 2e cos थीटा। सो हियर कम्स 2e cos थीटा। अब सारी वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। 2e कितना था अपना, k q अपॉन d स्क्वायर, यही था, देखा था मैग्नीट्यूड है। और cos थीटा कितना है यहाँ पे, a अपॉन d। तो d स्क्वायर एंड d स्क्वायर, दिस बिकम d टू द पावर 3 एंड k q a। और यहाँ पे अपन को डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला वो भी दिख रहा है, मैग्नीट्यूड, दैट 2qa बिकम्स p। इलेक्ट्रिक डाइपोल लिख दूंगा, इसको रिप्लेस कर 2qa को मैं p लिख सकता हूँ। देखो तो क्या बन जाएगा, k एज इट इज, और 2qa बन गया kp अपॉन dq। दिस बिकम्स द फाइनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब यहाँ पे d की वैल्यू रख देते हैं हम। d की वैल्यू क्या थी, नेट kp अपॉन d क्यूब। हाउ अवर d इज a टू द पावर, और d स्क्वायर है यहाँ पे, है ना, ध्यान रखना। इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, d की वैल्यू पावर कितनी, 1/2। सो d इज a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 1/2। सो d क्यूब बिकम्स a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2। क्यूब था और 1/2 था, तो बन जाएगा 3/2। अब यहाँ पे ध्यान रखना, वैसे ही पहली वाली कंडीशन दैट r इज एज कम्पेयर टू a, r इज टू लार्ज दैट वी कैन नेग्लेक्ट a फ्रॉम हियर। a जो है बहुत छोटा है, हमें पता है, क्योंकि डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो बनता है उसमें जो डिस्टेंस होती है दोनों की चार्ज पार्टिकल्स की, वो कम होती है। तो r के कंपेरेटिवली a को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो ये बन जाएगा r टू द पावर 3/2। और यहाँ पे 2 और 2 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो r स्क्वायर एंड 1/3/2 दिस वुड बी कैंसिल आउट, एंड द फाइनल रिजल्ट इज कि p अपॉन r क्यूब। सो दिस इज अवर फाइनल फॉर्मूला, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाय दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल इज kp अपॉन r क्यूब। और जो एक्सियल पोजीशन पे थी वो हमने देखी थी 2kp अपॉन आर क्यूब। ध्यान रखना इन दोनों का एक्सियल पे ये होता है, और ये के और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ये होता है। ये एमसीक्यू में आ जाता है अधिकतर क्वेश्चन में, ध्यान रखना इस चीज़ का। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी द एक्चुअल कंसेप्ट और रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल।